آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ آقا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا کی صداؤں سے فضائیں معطر، شہر حیدرآباد میں جشن میلاد کا جوش و خروش۔ تلنگانہ میں ووٹرز کو نوٹس دینے کا عمل شروع، 27 اگست سے 20 ستمبر تک دینا ہوگا جواب۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم حکم، صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد 15 ستمبر تک توسیع۔ پیسے کے لالچ میں حکومت اندھی ہو گئی، 22A اسکیم ہے، برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے، ہریش راؤ کا مطالبہ۔ تلنگانہ کی وزیر کونڈا سریکھا کے سابق OSD سمنٹ کے ایک FIR اور تلاش کے معاملے میں مبینہ تاخیر، جوبلیز انسپکٹر متو یادو معطل۔ گھٹ کسر کے حدود میں تیز رفتار کار نے 2 ویلرز کو دی ٹکر، 6 افراد زخمی، 2 کی حالت نازک۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ خصوصی جامع نظر ثانی کے تحت تلنگانہ میں ووٹروں کو نوٹس جاری کرنے کا عمل پیر سے شروع ہو گیا۔ نوٹس حاصل کرنے والے ووٹروں کی 27 اگست سے 20 ستمبر تک انتخابی حکام جانچ کریں گے، جبکہ نوٹس کی تیاری، پرنٹنگ اور تقسیم کا عمل 31 اگست تک مکمل کیا جائے گا۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے نوٹس کی پرنٹنگ، تقسیم اور ووٹروں کی جانچ کے سلسلے میں ضلع انتخابی افسران، الیکشن رجسٹرنگ افسران، AEROز اور BLOز کے لیے اہم ہدایت جاری کی ہیں۔ ہدایت کے مطابق جانچ کی تاریخ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل سلپس پرنٹ کر کے BLOز کے ذریعے ووٹروں تک پہنچائی جائیں گی۔ نوٹس جاری کرنے کے فوراً بعد BLOز اس کی تفصیلات ایپ میں درج کریں گے اور ووٹر کو نوٹس کی وجہ، جانچ کی تاریخ و مقام اور درکار دستاویزات کے بارے میں واضح طور پر بتایا جائے گا۔ ووٹرز اپنے دستاویزات ووٹر پورٹل، BLO ایپ یا جانچ کے دوران ذاتی طور پر جمع کروا سکتے ہیں۔ جانچ کے موقع پر BLOز کو بھی EROز کے پاس موجود رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکام کو یہ بھی یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے کہ نوٹس حاصل کرنے والے ووٹر شخصی طور پر جانچ کے لیے حاضر ہوئے یا نہیں۔ اگر کسی ووٹر کو وضاحت پیش کرنے یا دستاویزات جمع کروانے کے لیے مزید وقت درکار ہو تو اسے مناسب مہلت دی جائے گی۔ ہائی کورٹ نے یہ ہدایت جیو نمبر 252 اور اس میں ترمیم شدہ جیو نمبر 103 کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن سمیت دیگر درخواست گزاروں نے ان سرکاری احکامات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ منگل کو سماعت کے دوران عدالت نے موجودہ ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد 15 ستمبر 2026 تک بڑھانے کا حکم صادر کیا، جس سے پرانے کارڈ رکھنے والے صحافیوں کو مزید راحت حاصل ہوئی ہے۔ درخواستوں میں صحافیوں کے ایکریڈیشن نظام میں جیو 252 اور جیو 103 کے ذریعے کی گئی تبدیلیوں پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ عدالت کے تازہ حکم کے مطابق صحافی 15 ستمبر 2026 تک اپنے موجودہ ایکریڈیشن کارڈز استعمال کر سکیں گے، جس سے ان کے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں کسی فوری رکاوٹ سے بچاؤ ہوگا۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت 15 ستمبر 2026 کو مقرر کی گئی ہے، جس میں عدالت درخواستوں اور حکومت کے جواب پر مزید غور کرے گی۔ ٹاسک فورس جوبلی ہلز زون ٹیم کے اہلکاروں نے مصدقہ اطلاع پر متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کے ساتھ مل کر جوبلی ہلز زون میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور 6 افراد کو گرفتار کیا، جو مبینہ طور پر درست طبی اہلیت کے بغیر کوالیفائڈ ڈاکٹر ظاہر کر رہے تھے اور غیر طبی مشقیں کر رہے تھے۔ ملزمین مبینہ طور پر معصوم مریضوں کو طبی علاج فراہم کر رہے تھے، جبکہ خود کو اہل طبی
प्रैक्टिशनर्स के तौर पर झूठा जाहिर कर रहे थे। इस तरह की कार्रवाइयाँ मरीजों की सेहत और हिफाजत को ख़तरे में डालती हैं और इसके नतीजे में गैर क़ानूनी माली फ़ायदा होता है। मुलज़िमीन के कब्ज़े से कई मेडिकल अशिया भी ज़ब्त की गई। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस ने बहुत जुबली हिल्स टास्क फोर्स और सिकंदराबाद टास्क फोर्स ने एक स्पेशल ऑपरेशन में 11 फेक डॉक्टर और एक मेडिकल शॉप ओनर को अरेस्ट किया है। ये 11 डॉक्टर फेक सर्टिफिकेट के ऊपर, इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वहाँ पे फेक सर्टिफिकेट रख के ये पूरा क्लिनिक चला रहे थे। तो ये टोटल 11 डॉक्टर के ऊपर और एक मेडिकल शॉप ओनर के ऊपर हमने 11 केसेस बुक किया है, जिसमें से मधुरा नगर पीएस में 2 केसेस, जुबली हिल्स फिल्म नगर बोराबंडा में 1 केस, रामगोपालपेट और दोमलगुड़ा में 1-1 केस और चिलकलगुड़ा ओई सिटी में 2-2 केस, ऐसे टोटल 11 केसेस हमने आज बुक किए हैं और इन सब को हम आज अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। इनके क्लिनिक से हमने कुछ मटेरियल भी सीज किया है, जिसमें से कुछ फेक सर्टिफिकेट्स और डिग्री सर्टिफिकेट है। ऐसे फेक सर्टिफिकेट बना के एज ए MBBS डॉक्टर वो दिखा के ये क्लिनिक चला रहे थे। उसके बाद उनके शॉप से, उनके क्लिनिक से हमने कुछ ऐसे रबर स्टैम्प भी बरामद किए हैं, जिसमें से उन्होंने MBBS का रबर स्टैम्प बना के वो ये प्रिस्क्रिप्शन पेपर के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पेपर भी हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, ग्लूकोज बॉटल इनसे हमने बरामद किए हैं। ये पूरा डॉक्टर, इनके कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। इसमें 11 लोगों में से एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन था, एक नर्स थी, उसके बाद एक ने प्रीवियसली ओनली फूड स्टॉल चला के अभी 2 साल से ये क्लिनिक चला रहा था। एक अपने डॉक्टर बेटी के ऊपर सर्टिफिकेट रख के उसका फादर ये क्लिनिक चला रहा था। एक लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा था प्रीवियसली 10 साल, उसके बाद ये क्लिनिक स्टार्ट किया था। और सिकंदराबाद में भी हमने जो 6 डॉक्टर पकड़े, उसमें से 5 डॉक्टर प्रीवियसली कंपाउंडर का काम कर रहे थे और ये कंपाउंडर का काम छोड़ के इन्होंने एक क्लिनिक स्टार्ट किया था। और एक डॉक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन डिसकंटिन्यू करके ये क्लिनिक स्टार्ट किया था। तो ये से पूरा ये 11 डॉक्टर को हमने आज अरेस्ट किया है। और ये पूरा सोसाइटी में, छोटे मोटे मोहल्ले में, छोटे मोटे गलियों में, प्लस कुछ अच्छे एरिया में भी ये रेगुलरली 10 से 40 पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे रहे थे। उनके पास से ये 50 से 200 रुपये चार्ज कर रहे थे। और ये ट्रीटमेंट में भी रेगुलरली इंजेक्शन देना, ग्लूकोज बॉटल चढ़ाना, एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना, ऐसे सीरियस ऑफेंस ये कर रहे थे। इसमें कोई भी RMP डॉक्टर का भी इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और ये पूरा हमने ये मटेरियल आज सीज किया है। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से जनरल पब्लिक को यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ट्रीटमेंट लेते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहे। आप रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कीजिएगा। ऐसे फेक डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे तेलंगाना में रिसेंटली बहुत ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें से ये RMP डॉक्टर के इल ट्रीटमेंट। BRS पार्टी के साबिक वजीर और सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि 22A को लागू करते हुए रातों रात पैसा कमाने का मंसूबा बनाया गया है। हरीश राव ने कहा कि पैसे के लालच में हुकूमत अंधी हो गई है। उन्होंने कहा कि आखिर कितना पैसा कमाएंगे, एक दिन पैसे का यही लालच रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी और हुकूमत के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। 30% कमीशन के लिए हुकूमत जो साजिशें कर रही है, उससे आवाम की ज़िंदगियां अजीरन हुई हैं। जायदादों को 22A में डालकर पैसा कमाया जा रहा है। उन्होंने 22A को स्कैम करार देते हुए इसकी बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। శిక్ష ప్రజలదా? నువ్వు రాత్రికి రాత్రి అత్యాశకు పోయి నువ్వు డబ్బులు సంపాదించాలనే దురాశలో ఈ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ భూములన్నీ 22 ఏళ్ళు పెట్టిండు. కానీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి తెలియంది ఒకటి ఉంటుంది, నీ డబ్బు దురాశనే నీ దుఃఖానికి ఏదో ఒకనాడు కారణమైతుంది. మిస్టర్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, దురాశ ఎన్నటికైనా చేటే.
నువ్వు ఈ 22A పెట్టాలి, కమిషన్లు కొట్టాలి, 30% వసూలు చేయాలని చేసిన ఒక కుట్రతోని ఇలా లక్షలాది మంది ప్రజల జీవితాలు ఆగమైనాయి. అరే పెళ్లిలు ఆగమవుతున్నాయి, దవాఖానకు బయట వాళ్ళకి పైసలు లేక బ్యాంకులకు కుదబెడదామంటే బ్యాంకులు తీసుకోవట్లేదు, అప్పులు ఇచ్చేవాడు అప్పులు ఇస్తలేడు, అమ్ముకుందామంటే కొనేవాడు లేడు, ప్రాపర్టీల విలువ తగ్గిపోయింది. बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बरतानिया दौरे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस के क़याम से मुताल्लिक़ किए गए दावे को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 85 साल तारीख़ में इसकी भी कोई भी ब्रांच या कैंपस बूस्टन के अलावा किसी दूसरे शहर में क़ायम नहीं की गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी कैंपस लंदन को छोड़कर किसी दूसरे शहर में नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 900 साल तारीख़ में ऑक्सफोर्ड के बाहर कोई कैंपस या ब्रांच कायम नहीं की गई। रेवंत रेड्डी ये झूठे दावे कर रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस फ्यूचर सिटी में कायम किए जाएंगे। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि वज़ीर आला और दूसरे काबीनी वज़रा के दरमियान कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के 10 मिनट बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पहुंचे। సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా బోస్టన్ తప్ప వేరే క్యాంపస్ ఓపెన్ చేయలేదు. మ్యాసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ MIT వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్పారు, మేము MIT బోస్టన్ తప్ప ఎక్కడ కూడా క్యాంపస్ ఓపెన్ చేయడం లేదు. మూడవది కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ కూడా మేము లండన్లో తప్ప ఎక్కడ కూడా క్యాంపస్ ఓపెన్ చేయడం లేదు. దాదాపుగా 900 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతనమైన ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ, ఆ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఆక్స్ఫర్డ్ అనే ప్లేస్లో అంటే ఆ యూనివర్సిటీ ఉండే ప్లేస్ తప్ప వేరే చోట ఎక్కడ కూడా మేము యూనివర్సిటీ ఓపెన్ చేయడం లేదు అని వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में मंजूरा स्मार्ट नए राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को मुकामी ASO नरसिंहराज और साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी में तकरीबन 7 दुकानों के तहत स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम अंजाम दी। आजमपुरा डिवीज़न के अहल ख़ानदानों में ये कार्ड तकसीम किए गए। ASO नरसिंहराज ने बताया कि 1 हफ्ते तक स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का ये अमल जारी रहेगा। आवाम जिनके राशन कार्ड मंजूर हो चुके अपने कार्ड हासिल कर सकते हैं। रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने SIR नोटिसों से मुतालिक DMC चार मीनार जोन में मुनक़िदा कुल जमात इजलास में शिरकत की। इजलास में मजलिस की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि आवाम को जो नोटिसें जारी की जा रही हैं उसमें उनका SIR के मुसव्विदे में नाम ना आने और दूसरी खामियों से मुतालिक वजह का जिक्र नहीं है। जो भी अगली नोटिसें जारी की जाएंगी उसमें जो वजह ज़रूर बताई जाए ताकि आवाम को पता चले कि इसी वजह से उनका नाम मुसव्विदे में शामिल नहीं हुआ है। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि साबिक़ में जो गलतियाँ मुतालिका अमले की तरफ से की गई हैं अगर फिर वही गलती दोहराई गई तो उससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा की आमद मरहबा, आखा की आमद मरहबा, इन सदाओं से हैदराबाद दक्कन की फ़िज़ाएँ मुअत्तिर हैं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पर जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजावट की गई हैं। पुराने शहर के इलाक़ों
याखुतपुरा, बड़ा बाजार, दबीलपुरा, हुसैनी अलम, तालाब कट्टा, मुगलपुरा और दूसरे इलाकों में बरक़ी खुमखुमों और सब्ज़ परचमों की सजावट देखी गई है। हमारंगी लाइट्स भी लगाई गई हैं। गुज़िश्ता रात आवाम की बड़ी तादाद सजावटी मकामात का मुशाहिदा करती हुई देखी गई। शहर में नातों की गूंज सुनाई दे रही है। जगह जगह पर पकवान का भी एहतमाम किया जा रहा है। 11 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होगा, जबकि शहर के कई मकामात पर भी मुहाफिल और जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा के साबिक़ OASD संबंध के केस के सिलसिले में जुबली हिल्स इंस्पेक्टर मुत्तू यादव को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जाता है कि FIR दर्ज करने में ताख़ीर की और संबंध की तलाश में नाकामी की वजह से ये फैसला किया गया। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर मुत्तू यादव ने 3 हफ्ते पहले ही जायज़ा लिया था। हैदराबाद के नवाई इलाके गटकसर में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। 4 मुतासरीन का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से बताया गया है और 2 तालिबे इल्म बताए गए हैं। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि हादसे की ज़िम्मेदार कार केसरा से गटकसर जा रही थी और इसने में 2 टू व्हीलर्स को भी टक्कर दे दी। ज़ख्मियों की उम्रें 22 से 24 साल के दरमियान बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आंध्र प्रदेश श्रीसलम के लॉज में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक श्री सत्य साई ज़िले का 36 साला सुधाकर, उसकी 3 बहनें और 15 साल का भांजा श्रीसलम से सुधाकर के ऑटो रिक्शा में वड्डे सत्य राम पहुँचे और वहाँ पर लॉज में क़याम किया। इस दौरान लॉज के स्टाफ ने कमरे के बंद होने और कोई हरकत ना होने के अलावा ताफुन पर शुबा जाहिर किया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। जब दरवाज़ा खोला गया तो 5 की लाशें कमरे में पाई गई और 5 की लाशें लटकी हुई थीं। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सुधाकर की 3 बहनें सेहत के मसाइल का शिकार थीं और 2 बड़ी बहनें अपने शौहरों से अलहदगी अख्तियार कर चुकी थीं। माली मसाइल और सेहत के मसाइल खुदकुशी की वजह बताए जा रहे हैं। तेलंगाना सेफ की जानिब से हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मिठाई की दुकानों पर धावे किए गए। बताया जाता है कि फूड सेफ्टी पुलिस और तेलंगाना सेफ इन्फोर्समेंट की 16 टीमों ने केवल इलाके में ये धावे किए हैं। मिठाइयों की जिन दुकानों पर धावे किए गए हैं उनमें जी पुल्ला रेड्डी सेंटर किचन बेगमपेट भी शामिल है। इन धावों के दौरान सफाई, मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया का भी मुआयना किया गया। रात बिजनेस की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। बिहार के पटना में आज तुलबा की तरफ से लोक भवन तक मार्च को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पानी के फव्वारों का इस्तेमाल किया गया। तुलबा की बड़ी तादाद गांधी मैदान के पास जमा हुई थी और वो लोक भवन तक मार्च करना चाहते थे। एहतजाजी तुलबा 70वें BPSC इम्तहानात की मनसूखी को लेकर मुतालबा कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। इससे पहले आज सुबह से ही पटना के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई थी। दोपहर में तुलबा जब आगे बढ़ने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। पानी के फव्वारों के इस्तेमाल के बावजूद भी नौजवान तुलबा खड़े रहे। रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जमहूरी तौर पर एहतजाज करने निकले थे, लेकिन हम पर लाठियां बरसाई गई हैं।
الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب یا سر پر اسکارف پہننے کی اجازت طلب کرنے والی درخواست خارج کر دی. یہ درخواست ایک نابالغ طالبہ نے داخل کی تھی. اس پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ طالبہ یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری مذہبی ثبوت پیش نہیں کر سکی کہ اسکول میں سر پر اسکارف پہننا اسلام میں لازمی ہے. جسٹس جے منیر اور جسٹس اندرجیت شکلا کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ اگر کسی تعلیمی ادارے کا ڈریس کوڈ یکساں، غیر تفریق آمیز اور ڈسپلین و ادارے کی شناخت بنائے رکھنے کے مقصد سے نافذ کیا گیا ہے تو اس میں انفرادی بنیاد پر تبدیلی کی مانگ نہیں کی جا سکتی. یہ معاملہ پریاگ راج کے اتار سویا واقع ٹیگور پبلک اسکول کی طالبہ سے جڑا ہے. طالبہ نے اپنی ماں کے ذریعے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر رہی تھی اور 11ویں جماعت میں داخلہ دینے اور مقررہ یونیفارم کے ساتھ سر پر اسکارف پہننے کی اجازت طلب کی تھی. وزیر اعظم نریندر مودی نے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یعنی UPI کے 10 سال مکمل ہونے پر اس کی تیز رفتار ترقی اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی رسائی کو ہندوستان کے لیے باعث فخر قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دہائی قبل UPI کا آغاز ملک کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سفر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا. وزیر اعظم نے منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ 10 سال قبل UPI متعارف کروایا گیا تھا جس نے ملک کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سفر کو ایک نئی سمت دی. ان کے مطابق UPI کی وسعت اور رسائی ایسی کامیابی ہے جس پر ہر ہندوستانی کو فخر ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ UPI کے استعمال سے متعلق اپنے تجربات شیئر کریں اور بتائیں کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام نے ان کی روزمرہ کی زندگی کو کس طرح تبدیل کیا ہے. کانگریس پارٹی کے لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے طبقاتی مردم شماری سے متعلق وزیر اعظم کو 2 مکتوب روانہ کیے ہیں لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. جے رام رمیش نے کہا کہ اب راہل گاندھی نے تیسرا خط لکھا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پہلا مکتوب 16 اپریل 2023 کو پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم کو روانہ کیا تھا. دوسرا خط صدر کانگریس نے 5 مئی 2025 کو لکھا تھا جبکہ ان دونوں مکتوبات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. اب جو تیسرا خط بھیجا جا رہا ہے اس پر صدر کانگریس اور راہل گاندھی کے دستخط ہیں. مدھیہ پردیش دھار کمال مولا بھوجشالہ کمپلیکس کو لے کر عدالت نے مسلمانوں کے نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ کی فراہمی کی ہدایت دی تھی. آثار قدیمہ کی جانب سے کمپلیکس کے احاطے میں ہی مسلمانوں کو ایک علیحدہ جگہ فراہم کی گئی ہے لیکن اس بات کو لے کر سکل ہندو سماج کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا ہے اور آج بند منایا جا رہا ہے. سکل ہندو سماج کے پیش نظر پورے علاقے میں پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا ہے. چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کو فکر میں ڈال دیا ہے. اپوزیشن پارٹیوں نے اس کے لیے مرکز کی مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کیونکہ بڑی مقدار میں چینی تیار کرنے میں استعمال ہونے والے گنے سے ایتھنول تیار کیا جا رہا ہے. اس ایتھنول کا استعمال E20 پیٹرول بنانے میں ہو رہا ہے. ان الزامات کے درمیان مرکزی حکومت نے خام چینی کے درآمد کے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے. اب ہر 2 ماہ میں ریفائنڈ چینی کی فروخت لازمی کو قرار دیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اب TRQ یعنی ٹیرف ریٹ کوٹا کے تحت درآمد کی گئی خام چینی کو مقررہ 5 تاریخ تک فروخت کرنے کی بجائے ہر شپمنٹ کے لیے الگ الگ مدت مقرر ہوگی. حکومت کی ہدایت کے مطابق اب درآمد کنندہ کو بل آف انٹری داخل کرنے کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر خام چینی کو ریفائن کر کے سفید چینی کی شکل میں گھریلو بازار میں فروخت کرنا ہوگا. کرناٹک کے مانڈویا میں بھیک مانگنے والی خاتون کے گھر سے 8 لاکھ روپے سے زائد کی رقم تھیلوں اور ڈبوں سے برآمد ہوئی ہے.
तफसीलात के मुताबिक भीख मांगने वाली नूरुन्निसा, जिनकी उम्र 70 साल बताई गई है, गोटालू के इलाके में एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। जब उसकी मौत की इत्तला मिली, मुकामी लोग जब उसकी तदफीन के इंतजामात के लिए उसके कमरे में आए और वहाँ देखा तो वहाँ कचरे का अंबार है और थैलों में नोट और सिक्के पड़े हुए हैं। अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 8 लाख रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद थी। ये रकम मुतवफ़िया के रिश्तेदारों के हवाले की गई। मुकामी लोगों की निगरानी में तदफीन का अमल अंजाम दिया गया। बाद में इत्तला मिली है कि अफराद ख़ानदान ने नूरुन्निसा के पास मौजूद रकम को फलाही कामों के लिए दे दिया है। डीजेबी एसटीपी टेंडर स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली की अदालत ने अपने अहकाम महफूज कर लिए हैं। 3 सितंबर को इस सिलसिले में फैसला सुनाया जाएगा। आज सत्येंद्र जैन को दिल्ली की रावस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था। मीडिया के सवाल का उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि सच्चाई की जीत होगी। दहली और एनसीआर के इलाके गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक शदीद बारिश की वजह से गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। दिल्ली और एनसीआर के बाज़ इलाक़ों में तालीमी इदारों को ऑनलाइन की हिदायत दी गई है। दिल्ली के मसरूफ़ इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। जगह जगह पानी जमा है। कई सबवेज़ भी पानी में डूब गए हैं। लोगों को अपनी गाड़ियाँ ढकेलते हुए भी देखा गया। दिल्ली के बाज़ मुकामात पर कहीं कमर तो कहीं घुटनों तक पानी जमा देखा गया। मुकामी महकमे मौसमियात ने दिल्ली में मज़ीद बारिश की भी पेशकशी की है। दूसरी जानिब हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की वजह से पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम की इत्तला है। जगह जगह पानी जमा देखा गया। आवाम को काम के दिन भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और दूसरे शहरों में शदीद बारिश हुई है। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। आखा की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा की सदाओं से फ़िज़ाएं मुअत्तर। शहर हैदराबाद में जश्न मिलाद का जोश व खरोश। तेलंगाना में वोटर्स को नोटिस देने का अमल शुरू। 27 अगस्त से 20 सितंबर तक देना होगा जवाब। तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम हुक्म, सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद 15 सितंबर तक तौसी। पैसे के लालच में हुकूमत अंधी हो गई। 22A स्कैम है। बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए, हरीश राव का मुतालबा। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा के साबिक OSD समट के एक FIR और तलाश के मामले में मुबैना ताख़ीर। जोबलीज इंस्पेक्टर मुत्तू यादव मुअत्तल। गटकसर के हुदूद में तेज रफ्तार कार ने 2 व्हीलर्स को दी टक्कर। 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।